Okay, so firstly, an outstanding journey with Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, and talking about your character, you have lived that character. So क्या कहना चाहोगे इस जर्नी के बारे में? जर्नी बहुत ही ब्यूटिफुल रही है. सो द ओनली वर्ड दैट आई कैन से फॉर दिस एंटायर जर्नी इज आई एम ब्लेस्ड to be a part of such a big and a beautiful show. I always say it's a dream team to work with. Everybody in the show, whether they are actors, directors, of course I have a special corner for the director of the show, but otherwise overall the team is extremely nice, humble and jovial. Okay, so talking about your show, it is doing really well, and your character is also playing really well, and you have taken so many interviews, and now you are giving an interview. So how does it feel for you? अच्छा लगता है कि जब आप कोई काम कर रहे हो, ऐसा कोई काम आपके साथ भी करे, जब आप प्यार देते हो, आपको प्यार मिलता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है. तो द सेम वे अभी तक इंटरव्यू लेती आई हूँ, अब दे रही हूँ तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है. कमियाँ निकालूंगी मैं आपकी. Okay. रेडी. Okay, so ma'am, you have done a great show. Talking about your show is doing really well. And talking about your character, you have done so many roles, and it's a great show. So what do you want to say about your journey? The only word I would like to say is that I'm blessed. I'm so sorry, आवाज़ आ रही है बीच में. मम्मा, आशु, मम्मा, रवीना सारे दरवाजे बंद कर देना बेटा. सारे दरवाजे बंद रखो, आवाज़ बिल्कुल नहीं करो. AC स्टार्ट करना है. Okay. About your journey, in short way. So the only word I can say is that I'm blessed. It's a beautiful show. It's a very very big and a hit show. And I think हर एक इंसान जो शो से जुड़ा है, whether they are actors, they are directors, everybody in the show is really humble, jovial and good to work with. Okay, so talking about Tarak Mehta have ruled Sony Sub over a decade now, and show is doing really well now. In 2022, show is doing super hit. So what do you want to say about the show, and how blessed you feel to work with Tarak Mehta? 100% ब्लेस्ड. आई मीन इससे बड़ा और बेहतर तो क्या ही हो सकता था. इट्स लाइक दैट, क्योंकि शो में हर कोई इस शो को लेके इतना पैशनेट है. अभी तक अगर आप कभी शूटिंग पर आएँ तो आप देखेंगे हर एक एक्टर अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, इवन आफ्टर 14 ईयर्स. कभी ऐसा मुझे फील नहीं हुआ किसी भी एक्टर को देख के कि बस परफॉर्म करने के लिए उन्होंने सीन परफॉर्म कर दिया कि भाई काम है, ख़त्म करना है एंड ऑल. एवरीबडी गिव्स देयर 100% इन द शो. Okay, so talking about, there are so many characters in the show. So आपका सबसे अच्छा किसके साथ है और सबसे अच्छा मज़ा किसके साथ आता है काम करने में? आई थिंक सारे एक्टर्स बहुत बहुत ही ब्रिलियंट हैं. सब लोग अपना बेस्ट देते हैं. लेकिन हाँ, सबकी तरह मैं भी जेठालाल की फ़ैन हूँ और उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो इतने सीनियर हैं कि आपको हमेशा जब भी आप उनका सीन अगर देखेंगे भी ना एज एन आर्टिस्ट, खड़े होकर आप उन्हें किसी और सीन में परफॉर्म करते हुए देखेंगे तो डेफिनेटली आप एक सीख तो घर लेकर ज़रूर जा सकते हैं अगर आप उन्हें ध्यान से देखें तो. सो जेठालाल की भी बात की तो आपका और जेठालाल में अगर आपको इफ यू वांट टू लर्न समथिंग अबाउट जेठा सर's character, so what will be that? As an actor, I think he gives his 100% even after 14 years. And also after working for so long in the industry, he gives his 100% in each and every scene. He does his reading before starting the scene. He gives us inputs. He understands the scene really well. He remembers each and every line, ना सिर्फ अपनी बल्कि सामने वाले कैरेक्टर की भी. ये I feel as an actor brilliant चीज़ है जो हर एक्टर को उनसे सीखनी चाहिए. Okay, so talking about डायरेक्टर की मैं बात करूँ तो डायरेक्टर सर जो है उनकी और आपकी केमिस्ट्री ऑफ द फील्ड कैसी है? बहुत सारे फोटोज हम जब देखते हैं इंस्टाग्राम में, देयर आर सो मेनी फोटोज कमिंग अप, देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल फोटोज. सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? ठीक है, अब शादी कर ली है, फंस गए हैं, निभा रहे हैं. Just kidding. I think Malav is one of the most humble and humorous guy I've
ever met in my life. He's really genuine, sweet. He comes from a Gujarati background. His father is also from the industry. He's a theatre director. But when I met him, I never felt that he's somebody who comes from this background. He was like so humble, grounded, and a very sweet person to work with. Okay, so talking about your character, and we'll go back from your starting days. So what do you want to say about your starting days? How you got this role? Tell us something about it. ओके तो आई फील जो एक्चुअल तारक मेहता लिखा जाता था उसमें रीटा रिपोर्टर का कैरेक्टर नहीं था. मुझे याद है आसिद भाई ने मुझे ऑफिस में बुलाया था और मेरा एक ऑडिशन लिया गया था जस्ट लाइक दैट किसी चीज़ के लिए, और ऑफ कोर्स रिपोर्टर का ही कैरेक्टर था जो उन्होंने मुझे दिया था. उसके बाद जो स्टोरी मुझे याद है वो ये है कि आसिद भाई को वो ऑडिशन इतना अच्छा लगा था कि उन्होंने डिसाइड किया कि ये कैरेक्टर उनके शो में होने वाला है. और मैं शो से पहले दिन से जुड़ी हूँ. जो चंपक चाचा कहानी में आते हैं और खो जाते हैं, वो एपिसोड से मेरी भी एंट्री हुई थी. दैट वाज आई थिंक द सेकेंड एपिसोड. सो आई एम वेरी मच पार्ट ऑफ द शो फ्रॉम द बिगिनिंग. Okay, so now it's over in decade and now as we see, so आपको सबसे ज़्यादा किस में आपके नाम से बुलाया जाता है कि रीटा रिपोर्टर मैम से बुलाया जाता है? ऑन सेट ऑफ कोर्स इट्स प्रिया, बिकॉज आई मीन यूजुअली सेट पे सब एक दूसरे को उनके खुद के नाम से बुलाते हैं. ऑफ सेट एवरीबडी कॉल्स मी रीटा, लाइक एज इन फैंस जब भी कोई देखेगा. और कई बार इट्स सो फनी, लोग आपको देख रहे होते हैं एंड यू नो यू आर लिटिल कॉन्शियस एंड दे विल गिव दैट लुक के एंड देन आई एम लाइक हाँ भाई मैं ही हूँ रीटा ही हूँ. ऐसा बहुत होता है मेरे साथ. Okay, so now it's been like 3 to 4 years when we see Daya ma'am is not in that house and Daya ma'am is not there. So आप क्या कहना चाहोगे? उस रोल को काफी ज्यादा मिस किया जाता है. So Daya ma'am आने वाले हैं या we'll get new Daya ma'am? I am genuinely not the right person to answer this. I'm so sorry. Maybe उसके लिए आपको आसिद भाई का इंटरव्यू लेना चाहिए. अगर आपको हेल्प चाहिए तो इंटरव्यू लेने मैं चली जाऊंगी आपके साथ. Okay, so in an interview आसिद मोदी सर से के पहले हमने मेन बैट्समैन को लिया था, वो जेठा सर थे. देन ऑल मेंबर्स केम अप. सो उस टॉपिक पे आपको क्या कहना चाहोगे और किस तरह से ये बड़ी फैमिली है और पूरा 10 साल मतलब रूल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? It's a beautiful journey for each and every one of us. I think बहुत ही प्यारा सफ़र रहा है हम सब के लिए. हर एक कैरेक्टर आई थिंक ये 100% क्रेडिट आसिफ भाई को जाता है. मैंने इतना पैशनेट प्रोड्यूसर कभी देखा नहीं है. आई रिमेंबर वो सबके ऑडिशंस खुद लेते थे. वो वहाँ पर होते थे जब ऑडिशंस हो रहे होते थे और सबको बिठा के पूरा ब्रीफ देना, समझाना. उसके बाद ऑडिशंस के बाद भी काफ़ी मीटिंग्स करना, ग्रुप मीटिंग्स हुई हैं, स्क्रिप्ट डिस्कशंस हुए हैं और आज भी वो हर एक स्क्रिप्ट का हिस्सा होते हैं. बिकॉज मालव इज द डायरेक्टर ऑफ द शो, तो मुझे पता है घर आने के बाद भी जूम मीटिंग्स होती हैं, पूरी स्क्रिप्ट्स डिस्कस होती हैं और सब लोग अपने इनपुट्स देते हैं उसमें. सो दिस शो इज़ अनदर लेवल एंड ये बाय फ्लूक या बाय लक हिट नहीं हुआ है. हर एक इंसान ने शो में अपना बेस्ट दिया है. Okay, so talking about last 2 years, it's a pandemic years we are facing. So कितनी ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती है एज एन एक्टर, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमें फेस करनी पड़ती है? मेरे लिए ये जर्नी थोड़ी अलग तरीके से डिफरेंट रही क्योंकि मैंने मेरे बेबी को बर्थ दिया था. माय बेबी अरदास वाज जस्ट 3.5 months ओल्ड जब ये पूरा पैंडमिक हुआ. पर्सनल लाइफ बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई थी. ऑफ कोर्स वी आर सो डिपेंडेंट ऑन आवर मेड्स एंड हाउस हेल्प्स, वो नहीं आ रहे थे. तो माय पर्सनल लाइफ वाज कम्प्लीटली अपसाइड डाउन. बट अगर हम शूटिंग इंडस्ट्री की बात करें तो डेफिनेटली हर किसी को बहुत बड़ा झटका लगा था क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं है, किसी ने ऐसा टाइम नहीं देखा था. स्पेशली आई से टीम ऑफ तारक मेहता, हम सब लोग इतने सालों से लगातार शूट कर रहे थे, कभी कोई ब्रेक नहीं आया, कभी ऐसा माहौल देखा ही नहीं कि घर बैठना पड़े. लेकिन फिर पूरी टीम लगभग 3 से 4 महीने घर बैठी. लेकिन हाँ, मैं आपको ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि इन 3 से 4 महीनों के जो आखिरी के 2 महीने 2.5 महीने थे उसमें हर एक आदमी ने मेहनत की है. जूम पर मीटिंग्स हुई हैं, स्क्रिप्ट मीटिंग्स हुई हैं. मेरे हस्बैंड ने लगातार बैठकर डायरेक्टर्स के साथ, राइटर्स के साथ, सब लोगों ने मिलकर डिस्कशंस किए हैं. बहुत सारे 8-8, 9-9 घंटे तक मीटिंग्स चलती थी जहाँ पे वो लोग ये डिस्कस करते थे कि अब शो को कैसे आगे बढ़ाना है, हम इस पैंडेमिक में कैसे
काम कर सकते हैं, जब शूटिंग स्टार्ट होगी तो हमें कैसे काम करना है, क्या स्टोरीज लेकर आनी है, बहुत मेहनत। Okay, so talking about your character, you've always been an in and out character. So इतना फैसिनेट कैरेक्टर मैंने आज तक नहीं देखा, और इन एंड आउट, एंड इट्स बिन लॉन्ग टाइम यू आर आउट नाउ. सो आने वाले समय में हम कब आपको फिर से देख सकते हैं एज एन रीटा रिपोर्टर? ओके, तो ये एक सबसे पहले मैं मिथ है कि रीटा रिपोर्टर शो में नहीं है. रीटा रिपोर्टर शो में है. जब हम दमन गए थे तब मैं भी गई थी शूट करने के लिए. मैंने वहाँ पे 2 सीन्स भी शूट किए थे. डेफिनेटली जो फ्लो पहले था मेरे कैरेक्टर का, अब वो नहीं है, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हुई और रियल लाइफ में रीटा रिपोर्टर की शादी नहीं हुई है. सॉरी, आई विल से इट अगेन, रियल लाइफ में. या, सो आई विल से इट अगेन. ओके, सो इट्स अ मिथ. आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट कि रीटा रिपोर्टर इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ तारक मेहता. वो है शो में, कहीं मेरा कैरेक्टर गया नहीं है. इट्स जस्ट के फ्लो टूट गया है थोड़ा सा कैरेक्टर का. उतना प्रोमिनेंटली अभी मेरा कैरेक्टर आता नहीं है जितना पहले आता था. द रीज़न इज़ क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो रियल लाइफ में तो मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन रियल लाइफ में रीटा रिपोर्टर का कैरेक्टर अनमैरिड है, तो दे कुड नॉट शो मी प्रेग्नेंट, और ऐसा हम कुछ नहीं दिखा सकते थे. सो देयर वाज अ पॉइंट जब मेरा टमी दिखने लगा एंड वी डिसाइडेड के अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ. एंड देन आई थॉट कि मेरा बेबी 3-4 महीने का होगा, आई विल गो बैक टू वर्क. बट अनफॉर्चुनेटली दिस पैंडेमिक हैपेंड, एंड वो खींचते थोड़ा एक फ्लो टूट गया है. बट आई एम वेरी मच पार्ट ऑफ द शो. मैं फिलहाल दमन की भी शूट में गई थी, और अभी भी रिसेंटली भी मैं बीच में ऑन एंड ऑफ शूट कर रही हूँ तारक की. Okay, so recently when Anjali ma'am changed, so there were many news coming up कि रीटा रिपोर्टर अब नहीं दिखेंगे. There were so many fake news. So how do you react on those news? I don't react. I mean, हर चीज़ को रिएक्शन देना आई बिलीव इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. मैं शो का हिस्सा थी, मैं शो का हिस्सा हूँ, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं शो का हिस्सा रहूँगी. आई डोंट थिंक सो कि आई वुड लाइक टू लीव द शो एट एनी कॉस्ट, बिकॉज इतना ब्यूटिफुल शो है. इस शो ने मुझे सिर्फ प्रोफेशनली ही नहीं, पर्सनली भी बहुत कुछ दिया है. तो आई रियली डोंट थिंक सो एनीथिंग कैन गो रॉन्ग एंड आई विल एवर लीव द शो. Okay, so it's a fresh year 2022. So how you are looking forward for this year? More and more work, more and more ways to connect with the audience, and blessings for everyone. And I hope and pray that for all of us this pandemic goes and we can live our normal life again. Okay, so lastly, what do you want to say to your fans who are watching out there? Thank you so much guys for all the love that you guys have given me till date. Even though it's been 2 years that I'm very much on and off part of Tarak Mehta and not very much visible overall on screen. But thank you for giving me love, which I keep getting on my Instagram. So thank you for that. Thank you so much, ma'am.